حضرت ابوالقاسم الجنید ابن محمد الخزاز بہت برگزیدہ صاحب علم و فضل، حکمت و دانش کے امین اور صاحب کشف و کرامات صوفی بزرگ تھے۔ آپ ایران کے شہر نہاون میں پیدا ہوئے۔ آپ کا آبائی پیشہ شیشہ گری تھا۔ عمر کا بیشتر حصہ بغداد میں گزرا، اس لیے آپ کو جنید بغدادی کہا جانے لگا۔ آپ کو صوفیہ کا امام کہا جاتا ہے اور آپ کا لقب سید الطائفہ ہے۔ آپ عقیدتاً ابو سور کے پیروکار تھے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اکابر تلامذہ میں تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اپنے وقت کے بڑے علماء اور فلاسفروں میں سے ہوتا تھا۔ ان کے علم کے چرچے بغداد سے نکل کر پورے بلاد اسلامیہ میں پھیل گئے تھے اور دور دور سے لوگ آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ آپ مشہور صوفی بزرگ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے تھے اور سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار پہلے دور کے صوفیہ میں ہوتا ہے۔ یہ بڑے روحانی مرتبے پر فائز تھے۔ حضرت جنید کی روحانی تربیت میں ان بزرگ کا بہت بڑا حصہ تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف اور اسلامی علوم پر کئی کتابیں تصنیف کی ہیں جن کا تذکرہ کتابوں میں موجود ہے، لیکن یہ کتابیں اب دستیاب نہیں ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی جن کتابوں کا تذکرہ اکثر ملتا ہے ان میں کتاب امثال القرآن، کتاب الرسائل، کتاب الخوف، کتاب الورع، کتاب الرہبان اور کتاب المحبت ہیں۔ ان کتابوں کے نام ابن ندیم رحمۃ اللہ علیہ کی شہرۂ آفاق کتاب الفہرست میں درج ہیں۔ انہوں نے 383 ہجری میں وفات پائی۔ افسوس کہ ابن ندیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کتابوں کے بارے میں کوئی وضاحتی نوٹ تحریر نہیں کیا۔ کتابوں کے نام لکھے ہیں اور لکھا ہے کہ یہ عربی میں ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ جن بزرگوں سے روحانی فیض حاصل کیا وہ شیخ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ محمد قصاب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ دونوں بزرگ اس دور کے نامور صوفی تھے۔ محاسبی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک معرکۃ الآراء کتاب التفکر والاعتبار تحریر کی تھی جو عربی زبان میں تھی اور فکر اسلامی و تصوف پر ایک مستند کتاب تھی۔ اس دور کے اکثر و بیشتر صوفی بزرگ بلند پایا عالم، فقیہ اور فلسفی تھے اور انہی کی کوششوں سے تصوف کو علمی حیثیت سے رواج ملا اور علم تصوف عام ہو کر عوام تک پہنچا۔ یہ 3 صدی ہجری کا دور ہے۔ اس میں شیخ بن معاذ رازی تھے جن کی کتاب المریدین بہت مشہور ہوئی۔ شیخ عمر بن محمد بن عبد الحکیم ابو حفص کا تذکرہ ملتا ہے جن کی تصنیف قیام اللیل والتہجد بہت مشہور ہے۔ منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس اسی دور کی کتاب ہے۔ کتاب الصحبت، کتاب المتمین، کتاب جود والکرم، کتاب الہمہ، کتاب البصر، کتاب التائتہ اسی صدی کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ ان کے مصنف مشہور عالم، فقیہ اور صوفی بزرگ شیخ ابو جعفر محمد بن حسین تھے۔ مشہور محدث اور عظیم صوفی بزرگ شیخ کبیر عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال سن 280 ہجری میں ہوا۔ انہوں نے عربی میں کئی کتب تحریر کی تھیں۔ ابن ندیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفہرست میں ان کے نام کتاب مقائد الشیطان، کتاب الاخلاق، کتاب التقوی اور کتاب المکارم الاخلاق درج کیے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اوائل عمر ہی سے نہایت سنجیدہ تھے اور فکر و ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ صوم و صلات کے سختی سے پابند تھے اور شریعت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ شیخ خراز، شیخ رویم، شیخ نوری جیسے صاحب فکر و نظر صوفیہ آپ کے حلقہ ارادت میں شامل تھے اور آپ کے شاگرد تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات نے اسلامی تصوف کو بہت متاثر کیا ہے اور ان کے اثرات تعلیم و تصوف پر چھائے ہوئے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی تصوف کے ایک بہت بڑے مکتبہ فکر کے پیشوا تھے۔ ان کی فکر کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کا ذریعہ وہ خطوط ہیں جو حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہمعصر صوفی بزرگوں کو تحریر کیے تھے اور وہ کسی نہ کسی طرح محفوظ رہ گئے ہیں۔
ان خطوط اور واعظوں کا حوالہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی عوارف المعارف، مولانا جامی کی نصیحت الانس، فرید الدین عطار کی تذکرۃ الاولیاء وغیرہ میں ملتا ہے۔ اس عظیم فلسفی عالم اور صوفی بزرگ کا انتقال سن 298 ہجری میں بغداد میں ہوا۔ سارا بغداد ماتم کدا بن گیا۔ ان کی موت پر وہ مقولہ صحیح ثابت ہوا کہ ایک عالم کی موت عالم کی موت ہے۔ حضرت جنید رحمت اللہ علیہ ساری زندگی رشد و ہدایت کے کام میں مشغول رہے۔ تبلیغ اسلام، مکارم اخلاق کی تعلیم اور خدمت خلق کو انہوں نے اپنا شعار بنا لیا تھا۔ درس و تدریس اور واعظ و نصیحت کے ذریعے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابدی پیغام کو بنی نوع انسان تک پہنچایا۔ حضرت جنید رحمت اللہ علیہ بچپن ہی سے نہایت ذہین اور متین تھے۔ ان کے اوپر حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کی خاص توجہ تھی۔ حضرت جنید رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ 7 سال کی عمر میں زیارت حرمین شریفین کے لیے تشریف لے گئے، جہاں اس وقت سینکڑوں اہل اللہ مقیم تھے۔ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ حضرت جنید رحمت اللہ علیہ حرم پاک میں 7 سال کی عمر میں ایک ایسی مجلس میں شریک ہوئے جس میں 400 علماء اور فضلاء کا اجتماع تھا اور زیر بحث شکر کا موضوع تھا۔ ہر شخص نے شکر کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا، لیکن کسی کی بات دل کو نہ لگتی تھی۔ سری سختی رحمت اللہ علیہ، جن کے ہمراہ حضرت جنید اس مبارک سفر میں تشریف لائے تھے، انہوں نے حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور کہا، جنید تمہارا کیا خیال ہے؟ سب کی نگاہیں اس 7 سالہ بچے پر مرکوز ہو گئیں، جو بڑی متانت اور سنجیدگی سے مجلس میں موجود اہل علم کے خیالات سن رہا تھا۔ حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ شکر یہ ہے کہ اللہ کی حکم عدولی نہ کی جائے اور اس نعمت کو حکم عدولی کا ذریعہ نہ بنایا جائے جو اللہ نے بندے کو عطا کی ہے۔ سب کے سب اٹھے کہ شکر اس کے سوا کچھ نہیں۔ فرزند تو نے جو کہا سچ کہا۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے بچے، اللہ اس انعام کو تیری زبان سے جاری فرمائے گا۔ یہ اللہ جل شانہ کا انعام و اکرام تھا کہ اس نے ایک 7 سالہ بچے کے قلب میں وہ بات ڈال دی جو 400 اکابر علماء و فضلاء کی رائے پر بھاری تھی۔ قابل احترام ہیں وہ ہستیاں جنہوں نے ایک بچے کی رائے کو اپنی رائے پر مقدم تصور کیا اور اس کی بات کو تسلیم کیا۔ علم کی فضیلت اور علم کا مقام یہی ہے۔ علم کبر اور غرور کا نام نہیں، علم عاجزی اور انکساری ہے۔ حضرت جنید رحمت اللہ علیہ جب بیت اللہ کے سفر سے واپس ہوئے تو اپنے آبائی کام یعنی شیشہ گری میں مصروف ہو گئے۔ جو وقت بچتا وہ عبادت اور ریاضت میں گزارتے اور حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کی مجلسوں میں شریک ہوتے۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے مرید خاص اور جانشین تھے اور بغداد میں ان کے کشف و کرامات کا بڑا چرچا تھا۔ ان کا پیشہ استعمال شدہ سامان کی تجارت تھا۔ بغداد میں سب سے پہلے انہوں نے اس صوفیانہ اسرار کی تعلیم کا آغاز کیا۔ عراق کے اکثر اکابر صوفیہ ان کے پیروکار تھے۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کی رہنمائی میں حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے وہ مقام نظر حاصل کیا اور علم تصوف میں اس کمال کو پہنچے کہ ان کے شاگردوں میں ایسے ایسے باکمال صوفیہ کرام ہوئے کہ وہ اپنی اپنی جگہ مینار نور تھے۔ ہر ایک مقام سے آگے گزر گیا مہ نو، کمال کس کو میسر ہوا ہے بے تگ و دو۔ نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی، کہ دل کو حق نے کیا ہے نگاہ کا پیرو۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت اور کوشش کو ضائع نہیں کرتا اور جو جتنی کوشش کرتا ہے اتنا ہی پاتا ہے۔ اور وہ جو بندہ خاص ہو اور اللہ رب العزت نے جسے بندگان خدا کی رہنمائی اور خدمت کے لیے چن لیا ہو تو اس کے نصیب کا کیا کہنا۔ حضرت جنید رحمت اللہ علیہ وہ خوش نصیب مرد آفاقی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے جوہر حکمت بچپن ہی میں عطا کر دیا تھا۔ حضرت جنید رحمت اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کی تربیت اور تعلیم نے انہیں تصوف کی دنیا کا آفتاب بنا دیا۔ کون ایسا مسلمان ہے
जो फ़क्र जुनैद बुस्तामी की आरजू नहीं करता, और खुश नसीब है वो जो इस मिल्लत इस्लामिया में जुनैद बुस्तामी बनकर जाहिर हुआ। खुदा से फिर वही कल्बो नजर मांग, नहीं मुमकिन अमीरी बेफकीरी। 40 साल तक हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह की ऐसी इताअत की कि इताअत का हक अदा कर दिया। रात दिन की रियाजत और मुजाहिदों का समर उनको मिला और वो रोशनी दरबार खुदाबंदी से उन्हें अता हो गई जिसके सामने शान सिकंदरी बेमकाम व बेअसर हो जाती है। आपके ज़ुहद व इबादत और रियाजत का ये आलम था कि मुस्तकिल 30 साल तक आप रातों को जिक्र में मशगूल रहे और सारी सारी रात खड़े रहते और अल्लाह अल्लाह आपके लबों से जारी रहता। एक वक्त ऐसा आ गया कि हजरत सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत जुनैद से कहा कि अब तुम वाज करो और लोगों को खैर की तरफ बुलाओ, नेकी का रास्ता दिखाओ। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने इस रास्ते को इख्तियार करने में उजलत न दिखाई और खामोशी इख्तियार कर ली। फिर यह हुआ कि उन्होंने एक रोज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह को वाज करने की हिदायत की। सुबह जब वो सोकर उठे तो रूहानी कैफियत का आलम ही कुछ और था। कैफ व मस्ती, जज्ब व सरशारी ने गुलामी में सरवरी बख्श दी थी, ऐसी सरवरी जिसके आगे सिकंदरी व मीरी बेतौकीर व बेमकाम। इसी आलम कैफ व मस्ती में हजरत सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह के घर पर पहुंचे। वो पहले ही उनके मुंतजिर थे और उनके लबों पर मुस्कुराहट थी। हजरत जुनैद दीदार हबीब खुदा के कैफ में थे। जाकर कहा कि रात मैंने आकाए दो जहां सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है। हुजूर ने हिदायत की कि मैं पंदोवाज का सिलसिला शुरू करूं। हजरत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जुनैद तुमने मेरा कहा न माना, लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, अब इताअत के अलावा कुछ न होगा। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह के वाज में लोग दूर दूर से आकर शरीक होते और उन पर ऐसा असर होता कि हवास खो बैठते। ऐसी आहोजारी और गिरिया होता कि सुनने वाले काबू से बेकाबू हो जाते। एक दिन हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह हाजरीन से मुखातिब थे। सुनने वाले आलम हैरत में उनकी शीरी बयानी और मसाइल को समझाने के असलूब से वारफ्तगी के जज्बात से झूम रहे थे कि हाजरीन में से एक नौजवान खड़ा हो गया और सवाल किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल से क्या मुराद है कि मोमिन की फरासत और दानाई से डरो कि बेशक वो खुदा के नूर से देखता है। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने नौजवान का सवाल सुना और सर झुकाकर आंखें बंद कर लीं और किसी सोच में डूब गए। हाजरीन ने बीच में खड़े हुए उस नौजवान को कहर आलूद नजरों से देखा, क्योंकि उसने शेख से सवाल करके वाज का मजा ही खराब कर दिया था। वो उसे जरूर नुकसान पहुंचाते अगर उन्हें शेख का एहतराम मलहूज न होता, क्योंकि वो दबे लफ्जों में उसे बुरा भला कह रहे थे। अचानक हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह उस नौजवान से मुखातिब हुए, ए नौजवान, तू इस्लाम इख्तियार कर ले कि तेरे दिन फिर गए और तेरे इस्लाम के कबूल करने का वक्त आ गया। वो नौजवान आगे बढ़ा और हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया और उसने कहा कि मैं मुतमईन हो गया हूं। हाजरीन ने नारे तकबीर बुलंद किया और चारों तरफ से नौजवान को, जो गैर मुस्लिम था और मुसलमान हुआ था, मुबारकबाद देने लगे। इमाम बाफई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इस एक वाक़े में हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह की दो करामतें पोशीदा हैं। एक तो हजरत जुनैद को ये मालूम होना कि सवाल करने वाला नौजवान गैर मुस्लिम है, और दूसरी करामत ये कि इस बात पर मुत्तले होना कि ये इस्लाम कबूल कर लेगा। जिस मानी पेचीदा की तस्दीक करे दिल, जिस मानी पेचीदा की तस्दीक करे दिल, कीमत में बहुत बढ़ के है ताबिंदा गोहर से। काफिर की ये पहचान कि आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान कि गुम उसमें है आफाक। मर्द आफाकी की शान ही ये है कि गुम उसमें है आफाक। हजरत जुनैद असरार कायनात के अमीन थे और यही वो अमानत है जिसको मोमिन की फरासत से ताबीर किया गया है और उससे डरने को कहा गया है। क्योंकि मोमिन खरे और खोटे, सच और झूठ, हक और बातिल, खैर और शर,
नेकी और भलाई में तमीज कर सकता है, न वो धोखा खाता है और न किसी को धोखा देता है। उसका जाहिर और बातिन एक होता है, उसकी खलवत और जलवत एक होती है, उसका कौल और फेल एक होता है, उसका नफ्स उसके ताबे होता है, वो नफ्स के ताबे नहीं होता, वो अल्लाह के नूर से देखता है, वो सबसे पोशीदा होता है, उससे कोई पोशीदा नहीं होता। अफलाक से है उसकी हरीफाना कशाकश, खाकी है मगर खाक से आजाद है मोमिन। हजरत जुनैद का दौर वो था कि इस दौर के लोग उसे दौरे फितन और वहशत कहते थे। तसव्वुफ के खिलाफ अच्छी खासी महाज आराई थी। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने एक दरमियानी रास्ता इख्तियार कर लिया, टकराव से दूर रहने का रास्ता। उन्होंने हालात वाक़यात पर सब्र करने की तलकीन की और रूहानियत के मिशन को जारी रखने के लिए एतदाल पसंदाना रवैया इख्तियार कर लिया। उनके दौर में ऐसे मराकिज वजूद में आ गए जहां इल्म और फजल के चर्चे थे। सूफिया की तालीम और तरबियत का पूरा इंतजाम था। वो तालीम गाहें भी थीं और मेहमान खाने भी। वो तहजीब नफ्स और तज़किये नफ्स के मराकिज भी थे और इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत गाहें भी। यहाँ जो अहले दिल आकर मुकीम होते थे, उनका मकसद दीन की रूह का हुसूल था। वो अल्लाह के लिए अपना आराम और चैन छोड़कर उन मराकिज में आते थे ताकि दीन हनीफ की असल रूह को अपने अंदर बेदार कर सकें। बिलाल, अम्मार यासिर, सलमान फारसी, अब्दुल्ला बिन मसूद और जैद बिन हारिसा के जज्बे दुरूं के अनवार से अपने आप को रंग सकें। इन रूहानी मराकिज में इल्मी बहसें होती थीं, हर किस्म की दीनी गुफ्तगू की जा सकती थी, लेकिन मनाजरे की गुंजाइश न थी। शेख की हैसियत और अहकाम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था और वो भी उन मराकिज में आने वालों के साथ शफकत और मोहब्बत का बर्ताव करता था। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह के मकतबा फिक्र के सूफिया सब्र और शुक्र के पैकर थे और किसी ज्यादती पर हरफ शिकायत मुंह पर न लाते थे। हर जानदार और हर मजहब व मिल्लत वाले का वो एहतराम करते थे। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह के तलामजा की तादाद हजारों से तजावुज कर गई थी और वो शरीयत की सख्ती से पाबंद थे। और सूफिया का हमेशा से ये अकीदा रहा है कि जो शरीयत और सुन्नत का इत्तेबा नहीं करता वो जिंदीक है। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह पैकरे ईसार व वफा थे। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह कमाले इल्म फजल थे। उनकी जबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज अल्लाह की खुशनुदी के लिए था। उनका उठने वाला हर कदम अल्लाह की रजा के लिए था। उनकी आंख से टपकने वाला एक एक आंसू अल्लाह की याद का मजहर था। वो सर तापा इज्जो इंकिसार का नमूना थे। वो हलीम तबा और रवादारी का पैकर थे। वो कहते थे कि इल्म की कोई हद नहीं, इसका कोई किनारा नहीं और कोई इंतहा नहीं, इसकी कोई हुदूद नहीं। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि वज्द के इल्म में गर्क हो जाना बेहतर है इससे कि इल्म के वज्द में गर्क हो। वज्द के इल्म में गर्क होना असरारे कायनात में खो जाना है और इल्म के वज्द में गर्क हो जाना इल्म के किब्र में मुब्तला होना है। अल्लामा इकबाल इसी को इस तरह मुतारिफ कराते हैं, बताऊं तुझको मुसलमान की जिंदगी क्या है, यह है निहायते अंदेशो कमाले जुनू, हकायक़े अबदी पर असास है उसकी, ये जिंदगी है नहीं है तिलिस्म अफलातूं। फक्र जुनैदी की हकीकत यह है कि वह मुसलमान को हाजिर व मौजूद से बेजार करता है और मौत के आईने में जिंदगी की आरजू करता है। फक्र जुनैदी एक माबूद हकीकी की राह पर लगाकर मुसलमान को हजार सजदों से आजाद कराता है। मकाम फक्र में सिकंदरी की रंगारंगी देखकर साहिब असरार बन जाता है। फक्र जुनैदी सैयारों में, कहकशा में, फजाओं में मकाम फिक्र नजर तलाश करता है। फक्र जुनैदो बायजीद नगमे तौहीद का राज दरू है। दौलत सलमानी और सुलेमानी का अमीन है। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं वो तूफान। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने
अपने इल्म अमल से तसव्वुफ को आम मुसलमानों के दिल की धड़कन बना दिया। उनके मुरीदीन तलामुज़ा में ऐसे ऐसे चंद मोतबर और साहिब इल्म हजरात थे कि वो खुद अपनी जगह अपने मकतबे फिक्र के इमाम समझे जाते थे। अबुल हुसैन अहमद इब्न मोहम्मद अल नूरी हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के हम असरों के काबिल एतमाद साथी थे और हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह से फैज याफ्ता थे। नूरी रहमतुल्लाह अलैह शेर भी कहते थे और उनके शेर उस दौर में हर खास व आम की जबान पर थे और उनके तस्वुरात वही थे जो हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह के थे। उन्होंने भी हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिलकर इस्लाम की बड़ी खिदमत की है। उनके नूरी कहलाने की कई वजूहात किताबों में दर्ज हैं, लेकिन एक रिवायत जिसमें कहा गया है कि वो रात को सहरा में जाकर अल्लाह की इबादत करते थे और उस जगह से आसमान की बुलंदियों तक एक रोशनी की लहर जाती नजर आती थी, बहुत मशहूर है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को नूरी रहमतुल्लाह अलैह से बहुत मोहब्बत थी और वो उनको अपने से दूर न होने देते थे। तज़किरतुल औलिया में फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह पर एक ऐसा वक्त भी आया कि उन पर बेदीन होने और इस्लाम से फिर जाने का इल्जाम लगाया गया। उनके इस जुर्म में उनके कई और साथी भी शामिल थे। खलीफा वक्त को इतना बदजन किया गया कि उसने हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, अबू हमजा रहमतुल्लाह अलैह, रक्काम रहमतुल्लाह अलैह, शिबली रहमतुल्लाह अलैह और नूरी रहमतुल्लाह अलैह को काजी के हवाले कर दिया ताकि इन बुजुर्गों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। काजी मुंसिफ मिजाज शख्स था। उसने मामले की तह तक पहुंचने के लिए मुकदमा चलाने का फैसला किया ताकि अगर उनकी गुमराही का सबूत फराहम हो जाए तो उनको तहते कर दिया जाए। सबसे पहले काजी ने हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया कि अगर 20 दिनार में से अल्लाह की राह में कितना देना चाहिए। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया 20 दिनार और आधा दिनार। काजी ने गुस्से से कहा कि इस किस्म का निसाब तुम्हें किसने बताया। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कि उन्होंने 40,000 दे दिए जो उनका कुल सरमाया था और अपने लिए कुछ नहीं रखा। काजी ने कहा ठीक है, लेकिन ये आधा दीनार मजीद क्यों? हजरत शिबली ने जवाब दिया कि ये इस बात का जुर्माना कि उसने 20 दीनार अपने पास जमा करके रखे। इसके बाद काजी ने हजरत नूरी रहमतुल्लाह अलैह से फिक़ह के बारे में कुछ पूछा तो हजरत नूरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आपने गैर मुताल्लिक सवालात किए हैं। हम अल्लाह के बंदे हैं, हम उसी के हुक्म से खड़े हैं और उसी के हुक्म से चलते हैं। हम उसी के हुक्म से जिंदा हैं और उसके ताबेदार हैं। अगर वो एक लम्हे के लिए अपनी तवज्जो हमसे हटा ले तो हम जिंदा न रहें। हम उसी के लिए हैं, उसी के लिए जागते हैं, उसी के लिए सोते हैं। हम उसी की तरफ से आए हैं और उसी की तरफ वापस जाने वाले हैं। काजी हजरत नूरी रहमतुल्लाह अलैह की गुफ्तगू सुनकर हैरत में रह गया और उसने खलीफा को पैगाम भिजवाया कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर ये हजरात बेदीन और गुमराह हैं तो इस खित्ता अर्ज पर और कोई मुवहिद और तौहीद परस्त नहीं है। खलीफा ने इन सब बुजुर्गों को बुलवाया और कहा कि अगर आप हजरात कुछ लेना चाहें तो मैं पेश करूं। सब ने मिलकर कहा कि हम ये चाहते हैं कि आप हमें भुला दें। हम कोई इज्जत व एहतराम नहीं चाहते। हमारे लिए यही बहुत बड़ा इनाम होगा कि आप हमें वहम गुमान से महव कर दें कि हम तवज्जो के काबिल लोग नहीं हैं। खलीफा ने माजरत की और हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथियों को बाइज्जत तौर पर रिहा कर दिया। निगाह फक्र में शान सिकंदरी क्या है, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। तज़किरतुल औलिया में फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की कई करामात का जिक्र किया है। एक दिन एक औरत हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास आई और कहा कि मेरा बेटा गुम हो गया है, अल्लाह से दुआ करें कि वो मिल जाए। हजरत ने फरमाया सब्र से काम लो, वो वापस आ जाएगा। औरत कुछ दिन के बाद फिर आई और कहा उसका बेटा अभी तक नहीं मिला, आप उसके लिए दुआ करें। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर कहा
सब्र करो। इस तरह वो औरत हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह के पास आती रही और आप उसे सब्र की तलकीन करते रहे। वो माँ थी, उसके सब्र का पैमाना आखिर लबरेज हो गया और वो हजरत जुनैद पर सख्त नाराज होने लगी। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, नाराज न हो, अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली है, तुम्हारा बेटा आ गया है। उस औरत ने घर जाकर देखा तो उसका बेटा मौजूद था। कभी ऐसा भी होता है कि एक शख्स को अल्लाह ने अपनी नेमतों से माला माल किया होता है और वो अल्लाह को छोड़कर नेमतों का हो रहता है। इसी तरह का एक शख्स हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और आपको 500 दीनार की एक थैली पेश की। आपने पूछा, मेरे अजीज, तुम्हारे पास इसके अलावा और कुछ भी है? उसने जवाब दिया, मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। आपने फरमाया, तुम्हें मजीद दौलत की जरूरत है? उसने कहा, जी हां, मुझे इससे भी ज्यादा चाहिए। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ये वापस ले जाओ, तुम इसके सही हकदार हो। मेरे पास कुछ नहीं है और मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। औलिया कराम अपने आप को दुनियावी ख्वाहिशात से दूर रखते थे और उनके पास किसी किस्म की कोई मिल्कियत न होती थी, और अगर होती थी तो उसे अल्लाह की राह में खर्च कर देते थे। हुक्म है कि जो कुछ तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा है, अल्लाह की राह में खर्च कर दो। हजरत जुनैद का एक मुरीद था और वो उसको बहुत चाहते थे। दूसरे मुरीदों को ये देखकर हसद का मादा पैदा होने लगा। हजरत जुनैद ने इस बात को महसूस किया और एक मजलिस में इशारतन अपने अहले इरादत को समझाया कि मैं जो इस मुरीद का ख्याल रखता हूं तो इसकी वजह यह है कि ये औरों से ज्यादा हाल व काल का फहम रखता है। चुनाचे उन्होंने कहा कि मैं तुम सबके इत्मीनान कल्ब के लिए एक इम्तिहान कराता हूं। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने 20 परिंदे लाने का हुक्म दिया और अपने 20 मुरीदीन में तकसीम करवा दिए और कहा, जाओ इनको ऐसी जगह ले जाकर ज़िबाह कर लाओ जहां तुम्हारे सिवा तुम्हारे इस फेल को देखने वाला कोई और न हो। वो सारे मुरीद वहां से चले गए और परिंदों को ज़िबाह करके ले आए। सबसे बाद में वो मुरीद आया जिससे बाकी हसद रखते थे। उसके हाथ में जिंदा परिंदा था। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने दरियाफ्त किया कि ए अजीज, तूने इस परिंदे को ज़िबाह क्यों नहीं किया? वो मुरीद आंखों में आंसू भर लाया और कहा कि ए शेख, मुझे कहीं ऐसी जगह न मिली जहां मैं अकेला होता और मुझे कोई देख न रहा होता। मैं जहां जाता अल्लाह मेरे इस फेल को देख रहा होता, इसलिए मैं परिंदा ज़िबाह न कर सका। शेख जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, यह फर्क है जिसकी वजह से मैं इसे करीब रखता हूं। बाकी मुरीदीन शर्मिंदा हुए और उन्होंने माफी तलब की और हसद से पनाह मांगी। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह इल्म व इरफान, आ गई ये ज़ात और फ़क्र की उस मंजिल में थे कि मकान और लामकान की बंदिशों से आज़ाद हो गए। वो सच्चे मुसलमान थे, शरीयत व सुन्नत रसूल के पाबंद। वो लोगों को सीधी राह दिखाते और उन्हें गुमराही से महफूज रखते। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह के फ़क्र में हैदरी और कर्रारी का अक्स था। उनकी मिसाल उस मोमिन की थी जिसमें कायनात गुम हो। फ़क्र के हैं मौजज़ात, ताजो सरीरो सिपाह, फ़क्र है मीरों का मीर, फ़क्र है शाहों का शाह। This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.